Hello, hello. Good evening, everybody. Okay. First of all, today is the day of great pleasure. That's why wish you all of you very very happy Janmashtami. Okay. May God bless you everyone on this holy day of Lord Krishna. Okay, try to connect, hurry up. Everybody should connect this class, particular class of English. Okay, my voice is clear, dear? Ritik Srivastav, my voice is clear or not? Okay, wish you again, wish you very very happy Janmashtami. यस, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए. हरी अप एंड ओके कौस्तुभ, द वॉइस इज क्लियर और नॉट? वेरी गुड. अंचल श्रीवास्तव, yes dear, everybody should know it that today I am not feeling well. My throat is not working properly because of cold and cough. लेकिन कौस्तुभ साहब ने क्लास लगा दी तो मुझे क्लास लेना है, ये आप लोगों की मोहब्बत है. और आई एम हेयर. मैं एडिबल हूँ सही से? एम आई एडिबल? हाँ, मेरी आवाज़ कुछ आपको आज बहुत सुटेबल नहीं लगेगी बिकॉज इट्स आई एम सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, कोल्ड एंड कफ. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल क्लियर everything whatever I am going to do. Okay, now we should start the particular class of active and passive voice. Do you know active and passive voice? On the last turn we completed how to change into passive, how to change the 8 tenses. नहीं भाई dear, I am not able to sing a song. I can only teach you something. My voice is, I think, but it's your love and affection. Yes. So active and passive voice की क्लास जो हमारी चल रही थी, then you know कि how to change into passive. मैंने present tense, present indefinite tense, present perfect, present continuous इनको बताया. Everybody is well aware. और हम आज की क्लास में इसी को प्रोसीड करते हैं. What should I answer यार? सोना कुमारी, what should I answer? You are saying answer me please. बताइए क्या आंसर, क्या क्वेश्चन क्या है? What should I answer? बताइए भाई सोना कुमारी, क्वेश्चन आपका क्या है? You are writing again and again, sir please answer. What is the question? I am not able to understand what you are going to say. Very good evening Pandey ji, Vivek Pandey. So now let us don't waste our time and try just start the class. Present, okay, Richa Jha, present, thank you. So
now I am going to start the class. The board is clear? Yes, class is going to start. Now be careful, be tentative, whatever I am going to tell you. Okay. In the class of active and passive voice, dear, we have already discussed the present tense. Now today's turn is past tense. Past tense. And in past tense, first is past indefinite tense. Okay, in past indefinite tense, we are having subject plus helping verb was or were. Then verb की third form by and then object. This is the formula of past indefinite tense. Is it clear? Everything is clear? My voice is clear? Okay. I think you are getting me properly. Okay, and this, suppose the last term I gave you the example of he wrote a letter. Then according to this, the subject object is subject, then a letter. Letter is singular. If singular होगा तो was, a letter was written by him. Okay. If the sentence he wrote letters, then letters were written by him. Is it clear? Okay. Then I think there is no any problem. If you people are having create your interest to establish in your mind this formula, then next past continuous टेंस. मैं इसी सेंटेंस को दोबारा से ले लेता हूं. दिस सेंटेंस, सपोज दैट ही was writing a letter. This is the active. Then the formula is subject plus helping verb was
verb. Okay, then verb past participle, verb की third form, and by then object. According to this sentence, you can change it. A letter was being written by him. ये बहुत ही इजी भी है और समझने के लिए बहुत कुछ है, तो इसको आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली. अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, देन यू कैन चेंज एनी. ही वाज डूइंग दिस वर्क, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, देन क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय. हाँ, कोई भी सेंटेंस इससे रिलेटेड कंटिन्यूअस टेंस में अगर आता है, देन यू कैन डू and you can apply this particular formula. Okay dear, and this is the past continuous tense. Next one is past perfect tense. And in past perfect tense, this sentence again will be converted. He had written a letter. Then how it will be converted? Subject plus had plus been, then verb की third form, and by, and then object. Then simple, very easy. It is also very easy. Then you can write a letter. In passive voice you can change it. A letter had been written by him. This is the formula. And past perfect continuous you can't change it to passive. I have already told you in the starting of the class, just past perfect continuous you can't change. Any perfect continuous, present, future or past, you can't change. So these three formulas in past tense. You should write down in your notebook. Okay, try to write down. Good. Everybody has noted? ओके, कैन आई रब? इसको मिटा दूं मैं? ओके 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 ओके, क्लियर. डू इट, डू इट. ठीक है, इसको रब करता हूं एंड देन प्रोसीड द क्लास. I hope everybody has written in his notebook. Okay.
Now start the future tense. Future tense. First is future indefinite tense. Any sentence you can take. Suppose that he will write a letter. He will write a letter. Then what is your formula? I will tell you. Okay, then what will be your formula? Then subject plus helping verb will shall. Okay. And then be verb की third form plus by plus object. Okay, clear it. Okay. Yes. Then take it in passive. A letter will be written by him. अगर इसी सेंटेंस को I shall, okay. When object is I or we, then it will be shall. I and we followed by shall, okay. Suppose they will give me this pen, then I shall be given this pen by them. And future perfect tense. Already I told you that future continuous tense का पैसिव नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है. देन
you should try to write down subject plus will oblique shall okay, subject will or shall, then have, then be, verb की थर्ड फॉर्म by and object. Okay. Okay, good post it. I shall have written a letter. Yeah, he will have written a letter. Then how we will change it? Change it. A letter will have, and then take it been, and then written by him. Is it clear? देखिए कुछ नहीं है, परफेक्ट जब करेंगे विल या शैल हैव के बाद में आपको बीन लगा देना है एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. वेरी गुड. आई थिंक एवरीबडी हैज नोटेड. सभी ने इसको नोट कर लिया है? प्लीज शेयर करते रहिए आप लोग. क्लास इज कंटिन्यू बट सम पीपल आई थिंक जस्ट लीविंग द क्लास. व्हाट इज द रीजन यार? आप लोग क्लास को समझिए. अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो टेंसेस का जो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस था ये हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, टेंसेस हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो टेंसेस में है वो हमारा कंप्लीट हो गया है. अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय. ओके, नाउ यू नो वेरी वेल टेंसेस आर क्लियर्ड एंड कंप्लीटेड. तो अगर कोई भी सेंटेंस रिगार्डिंग आपके टेंस से आता है तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं इन फार्मूलाज की बिहाफ पर, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो. क्योंकि इनको नोट करिएगा और अपनी एक नोटबुक बना लीजिएगा इंग्लिश की, उसमें रखिएगा. अब इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग योर एक्टिव पैसिव वॉइस के देंगे. तो वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होंगे उनको आप समझिएगा. बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा. देन हाउ विल चेंज इट, तब आपको कैसे चेंज करना है. तो इसके लिए आप देखिएगा क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. कुछ सेंटेंसेस जो एकदम डिफरेंट होते हैं और वही कंपटीशन में आते हैं, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि द एक्सेप्शंस इज एवरीवेयर एंड दैट विल बी इन योर कंपटीशन. ओके, देन वी शुड ट्राई द क्लास. ओके, इसको रब कर दूं, मैं मिटा दूं. नोट कर लिया ना आप लोगों ने?
नथिंग, यस, मिटा दूं इसको? कैन आई रिपीट? ओके, अब देखिएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पहला नोट है नो, KNOW, नो, एंड ओब्लाइज। ओब्लाइज, ये दो वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आए हुए हैं तो क्या करेंगे आप? इट विल नॉट बी फॉलोड बाय, इसमें आपको they will be followed by to, not by। ये टू लगेगा। अब देखिएगा पैसिव, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। यू विल ओबलाइज मी, यू विल ओबलाइज मी, then it will be changed। how it will be changed? I shall be obliged to you, not by you, to you। थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है। You will oblige me, I shall be obliged to। किसी भी सेंटेंस में oblige वर्ब का यूज किया गया है तो आप समझ लीजिएगा वहां पर by का यूज नहीं होगा, to लगेगा। प्रीपोजिशन to will be there। एक एग्जांपल आपको नया सा देता हूं। मैंने बताया नो, तो चलिए देखते हैं। एवरी वन knows MK गांधी। एवरीवन नोज MK गांधी। इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव में चेंज करेंगे देन क्या होगा? MK गांधी, MK गांधी is known to। आगे नहीं पे बात, सेंटेंस ही नहीं प्रोसीड होगा। known to everyone, everyone। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसको मैं रब कर देता हूं। इंपॉर्टेंट नोट्स की ही बात चल रही है। दो वर्ड होते हैं, एक कंटेंट CONTAINED कंटेंट एंड इंटरेस्टेड। Dear, please again you're welcome।
Actually, there is some problem in network. That's why the video was paused. ओके, लाइव हो जाइए आप लोग जल्दी से. क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड आपको? कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए ये हो गया था, पॉज हो गया था. ओके, नया एक इंपॉर्टेंट रूल हम पढ़ाने जा रहे थे. कंटेंट एंड इंटरेस्टेड. अगर किसी भी सेंटेंस में ये दो वर्ड कंटेंट और इंटरेस्टेड आते हैं, देन द बैग कंटेन्स मेनी बुक्स. तो ये फॉलोड बाय इन, ये इन लगता है इसमें, नॉट बाय से नहीं होगा. मेनी बुक्स आर कंटेंट इन द बैग. दूसरा मैंने सेंटेंस दिया है, दिस मूवी इंटरेस्ट मी, देन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी. देखिए आपको क्लियर है या नहीं? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. ओके, मैं आगे प्रोसीड करूं, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? प्लीज गिव मी कमेंट्स. प्लीज ट्राई टू गिव मी कमेंट्स. कैन आई प्रोसीड द क्लास? ओके, अंचल श्रीवास्तव, थैंक यू. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट point is here. Important, very important point. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में, अगर वो सेंटेंस में आते हैं देन उनके जहां पे हम बाई लगाते हैं, बाई पैसिव बनाने में हम लोग बाई यूज करते हैं, बी बाई बाई. देन यू कांट यूज बाई. वो कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा. Surprised, laughed, alarmed. Surprised, laughed, alarmed, astonished. 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 Astonished, disappointed, distressed, disappointed, distressed. Okay. अगर ये वर्ड यूज हुए हैं तो बाई नहीं, इनके सब में एट लगेगा. AT, this preposition will be used. Suppose your failure distressed me. Your failure distressed me. Then I was distressed at your failure. आप लोग सब कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं, समझ सकते हैं कि ये वर्ड जहां पर भी यूज होंगे उसके बाद में एट ही लगेगा. डिसअपॉइंटेड एट मी,
Note down the word surprised, laughed, alarmed, astonished, disappointed, distressed. इनको नोट कर लीजिएगा. कंपटीशन के यही वर्ड्स हैं. बहुत ज्यादा ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं. Okay. There is one more important point again. If sentence starts, अगला नियम देखिएगा, who, by who. Suppose who gave you this pen. अगर who से start, in initial if you are having who, then what it will be? Who will be converted into by whom? By whom? अब वैसे ही देख लीजिए, gave दिया है तो ये past tense है. By whom were you given this pen? मेरा पॉइंट बताने का है कि who अगर है तो who को हम चेंज करेंगे by whom में. इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इफ इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी क्वेश्चन सेंटेंस की, WH वर्ड्स, WH में आपका आ जाएगा वेयर, वाई, what. The marker is also not working. Why, where and what. Suppose somebody will write, what did you give him? What नोट कर लीजिए, वेयर, वाई एंड व्हाट. ओके, वेयर, वाई एंड व्हाट, दीज आर द WH वर्ड्स. डू यू नो WH वर्ड्स? WH वर्ड्स में नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं. यस, ट्राई टू नोट डाउन. WH वर्ड की बात करते हैं. वेयर, वाई. आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर? The marker and everything is available, but that is in another bag. That's why.
द वॉइस इज क्लियर, ओके। तो नोट कर लीजिएगा प्लीज। वेयर, व्हाट एंड व्हाई, अगर इससे स्टार्ट होता, सपोज एग्जांपल देखिए, वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग, वेयर, तनु इसको नोट करिए, वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग। देन इसका जो पैसिव बनाएंगे तो वेयर इज अ सॉन्ग संग बाय हर। यस, ओके। ठीक है, नेक्स्ट। एक्चुअली मैं इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड, वेयर इज अ सॉन्ग संग बाय हर, गुड तनु, वेरी गुड वेरी गुड। इंपरेटिव सेंटेंस में अब हम चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, बात करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस की। नॉट सेइंग, संग, संग, SUNG, संग। एवरी टाइम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करिएगा पैसिव वॉइस में। यस, वेरी गुड, संग। गुड। अब हम बात करते हैं, ओके, एक सेंटेंस नोट करिएगा, आप लोग नोट करिए। इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज गिव मी पेन। प्लीज गिव मी पेन। Very good. You are requested to give me a pen. ये इंपरेटिव में अगर कहीं पर भी प्लीज आता है स्टार्टिंग में, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, देन आप इसको चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे स्टार्टिंग में, देन स्टार्ट्स। अगला सेंटेंस है, आपको मैं बताऊं, अगर इसका नेगेटिव बन जाए, प्लीज कॉमा डू नॉट कम हियर, प्लीज कॉमा डू नॉट कम हियर। नरसिंह त्रिपाठी, गुड। प्लीज कॉमा डू नॉट कम हियर। Yes, you are advised not to come here. No, I think, please, you are requested not to come here. ये भी सही है। No dear, no, 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 no. You are ordered not. It is incorrect. If the sentence is in imperative and start with please, don't be confused. Apply here. You are requested not to come here. You are requested, Tanu,
नोट करिए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर। नॉट टू कम हियर, वेरी गुड माही, माही यादव, वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल। ये किसी का कमेंट फॉरवर्ड का आया था, मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो समझिएगा प्लीज, को निगेशन में कैसे यूज करते हैं। ओके, तो कुछ एक सेंटेंस लिखिए, डू इट, डू इट, ओनली डू इट, DOIT, इट, डू इट। हाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव? बताइए भाई। भाई यू कहां से आ गया भाई? विवेक पांडे जी, भाई यू कहां से आ गया? मैंने तो डू इट बोला। इसको लेट से बनाइए, लेट इट बी डन। चलिए, ये आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट क्लियर। सो नो प्रॉब्लम, दिस क्लास को हम कल प्रोसीड करेंगे और आई होप एवरीबडी शुड बी रेडी। लेट इट बी डन। गुड गुड, दुर्गेश, दुर्गेश मतलब डीके। यस सर, लेट इट बी डन, वेरी गुड, वेरी थैंक यू वेरी मच दैट एवरीबडी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग। सो आपको कल हम कुछ एक्सेप्शंस, बस 10-5 मिनट की और एक क्लास में रह गया है, उसको हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। देन वी विल हैव अ प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ कोई प्रैक्टिस होगी। देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू, वेरी वंडरफुल, थैंक यू एवरीबडी। अगेन विश अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।